Hello everyone. Today our topic for discussion is Trans Himalayan Range and Purvanchal Hills. So my dear students, as we know that on the basis of physical features, India is divided into six physical divisions. So far the northern mountains is concerned, we see that northern mountains they are divided into six groups, divided into three groups. Northern mountains are divided into three groups. The Himalayan mountains, Trans Himalayas and Purvanchal Hills. So far the Trans Himalayas is concerned. Trans Himalaya range is concerned. We see that Trans Himalaya range is a mountain range located north of Great Himalayas. Trans Himalayan mountain range कहाँ पे located in north of Great Himalayas. North of Great Himalayas. Trans Himalayas, and this range is also known as Tibetan range. Because we see that this range is called as Tibetan range because most of it lies in Tibet. Lies in Tibet. Trans Himalayan mountain range is also known as Tibetan range. Clear? So we see that यहाँ से Trans Himalayas range. Most of it lies in Tibet. ठीक है ना? We see that important. अगर हम बात करेंगे मोटे रेंजेस जो ट्रांस हिमालयाज में है, we see that मोटे रेंजेस in ट्रांस हिमालयाज कौन कौन सा है? ज़नस्कर, याद रखना, ज़नस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज and Karakoram range. Mountain ranges in Trans Himalaya में मोटे जो इंपॉर्टेंट मोटे रेंज है वो कौन सा मोटे रेंज है? ज़नस्कर मोटेन्स है, ज़नस्कर मोटे रेंज, लद्दाख मोटे रेंज, कैलाश एंड काराकोरम रेंज. As we know that the Trans Himalayas they stretches for a distance of about 1,000 kilometers. From east-west direction. Stretches east-west direction में अगर हम देखेंगे 1,000 kilometers. Clear? And we see that the total width of the region is 40 kilometers. And we see that the average elevation is 3,000 meter above sea level. 3,000 meter above sea level is the average elevation of Trans Himalayan mountain range. So as we know that so far the Zanskar range is concerned. As we know Zanskar range कहाँ पे है? In the Union Territory of Ladakh. In the Union Territory of Ladakh में, ठीक है ना? Zanskar mountain range, Union Territory of Ladakh, and we see that it's a part of Tithi Himalayas, part of Tithi Himalayas, and we see that this is average height अगर हम इसकी बात करें 6,000 meter, ठीक है ना? We see that it serves as a boundary line between Ladakh region and Jammu and Kashmir. Boundary line serves as a boundary line. याद रखना, serves as a boundary line between Ladakh and Jammu and Kashmir. Serve as a boundary line. And we see that important अगर हम देखेंगे हाईएस्ट माउंटेन जो ज़नस्कर रेंज में वो है नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट माउंटेन इन ज़नस्कर रेंज. ठीक है, 9th हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड नंगा पर्वत. याद रखना, नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट माउंटेन कहां पे है? ज़नस्कर रेंज में. एंड इट इज 9th दुनिया का 9th वर्ल्ड 9th हाईएस्ट माउंटेन. And we see that the total height of this Nanga Parbat is 8,126 meter. 8,126 meter is total height. And we see that important pass जो ज़नस्कर रेंज में वो है जोजिला पास. याद रखना, जोजिला पास कहां पे है? ज़नस्कर
माउंटेन रेंज में, ठीक है ना। जोजिला पास इज आल्सो नोन एज द गेटवे टू लद्दाख, गेटवे टू लद्दाख, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे नाउ द लद्दाख रेंज। सो फार द लद्दाख रेंज इज कंसर्न्ड, वी सी दैट दिस लद्दाख रेंज it is also it is a huge and high plateau. याद रखना, लद्दाख रेंज is a huge and high plateau, huge and high plateau. लद्दाख रेंज it is also known as cold desert. cold desert भी कहते हैं इसे, cold desert. And we see that it lies between river Indus and Shok. याद रखना, लद्दाख रेंज कहाँ पे है? lies between river Indus and Shok. As we know that Indus river कहाँ से origin होता है? कैलाश मानसरोवर लेक. And Shok is a tributary of Indus. याद रखना, Shok इसकी tributary है river Indus की, ठीक है ना। And we see that लद्दाख कहाँ पे? It lies between river Indus and Shok. Lies between river Indus and Shok. Or we can say that this Ladakh plateau, it lies to northeast of Karakoram range. Northeast of Karakoram range के northeast में आता है लद्दाख range, ठीक है ना। So we see that this range, Ladakh range, it is between the main Himalayan range and Karakoram. Between main Himalayan and Karakoram. Main Himalayan and Karakoram range, ठीक है ना। Karakoram range. Important passes in Ladakh range is Khardungla Pass. याद रखना, Khardungla Pass. Khardungla Pass is an important mountain pass in Ladakh range. Khardungla Pass, Tangla Pass, ठीक है ना, Rohtang Pass, Photula Pass. These are the important passes in Ladakh range, ठीक है ना। Now, so far this कैलाश रेंज is concerned. अब हम कैलाश रेंज की बात करेंगे, जो कैलाश रेंज है, याद रखना, it lies entirely out of Indian territory. It lies. कैलाश mountains, कैलाश रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे. It lies out. This is कैलाश मानसरोवर. Important. कैलाश रेंज कहाँ पे है? Entirely out of, कहाँ पे? Out of Indian territory. It lies outside Indian territory. याद रखना. कैलाश range. So far this कैलाश range is considered lies outside Indian territory. याद रखना. कैलाश range, कैलाश mountain range, it lies outside of Indian territory. तो फिर कहां पे है? तिब्बत में, चाइना में, ठीक है ना, यहां पे। We see that the main attraction, जो इंपॉर्टेंट है अट्रैक्शन है कैलाश रेंज में, वो है कैलाश पीक, कैलाश माउंटेन पीक एंड मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर लेक एंड कैलाश पीक इज द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्टर्स, ठीक है ना। माउंट कैलाश जो है, उसी का टोटल अगर हम हाइट की बात करेंगे, इसके द हाइट ऑफ माउंट कैलाश इज 6714 किलोमीटर एंड वी सी द many rivers originated from we see the important rivers. अगर हम देखेंगे इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलुज रिवर, दे ऑरिजिनेट्स कहां से ऑरिजिन का है? होता है कैलाश माउंटेन से, ठीक है ना। यहां से ऑरिजिन होता है रिवर इंडस का। रिवर इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज ऑरिजिनेट कहां से होते हैं? कैलाश रेंज से, ठीक है ना। कैलाश माउंटेन रेंज कहां पे? इन तिब्बत में, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे काराकोरम रेंज के बारे में। सो फार द काराकोरम रेंज इज काराकोरम माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज का, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, याद रखना, इस काराकोरम रेंज, ठीक है ना। तो काराकोरम रेंज कहां पे है? काराकोरम रेंज इंटायरली लाइज इन अफगानिस्तान में भी है, उसी अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। काराकोरम माउंटेन रेंज, and we see that this mountain range is a home of highest peaks
many highest peaks in the world. जो important highest peaks दुनिया में है वो इसी कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में. And we see that Mount Everest कहाँ पे है? Mount Everest. This is also known as K2. K2. Mount Goodwin Ashton. K2 Mount Goodwin Ashton कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में. ठीक है ना. अगर हम गुडविन एस्टन की हाइट की बात 8612 मीटर. ठीक है ना. 8611 मीटर टोटल हाइट ऑफ K2 माउंट गुडविन एस्टन कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में. एंड वी सी दैट कांगरी साल्टोरो कांगरी पीक गाशब्रम पीक कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में. एंड वी सी दैट काराकोरम रेंज इज आल्सो द अबोर्ड ऑफ मनी हाइस्ट इंपॉर्टेंट. वी सी दैट लार्जेस्ट ग्लेशियर्स जो दुनिया के वो वहां पे है. वी सी दैट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो काराकोरम रेंज में वो है सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर. एंड वी सी दैट दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन नॉन पोलर रीजन एरियाज में सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है. फर्स्ट ग्लेशियर दुनिया की बड़ी ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट फ्रॉस्ट ग्लेशियर कहाँ पे? अंटार्कटिका में है लैम्बर्ट फॉरेस्ट. याद रखना लैम्बर्ट फ्रॉस्ट ग्लेशियर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट. एंड दिस इज सियाचिन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर. एंड वी सी दैट मनी अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन काराकोरम रेंज इज बाइफो ग्लेशियर बाल्तोरो ग्लेशियर बाल्तोरो ये ग्लेशियर्स. ठीक है ना. एंड हिस्पर. So these glaciers कहाँ पे? ये glaciers, all these glaciers, they are situated in Karakoram range में. ठीक है ना. कहाँ पे? Karakoram range में. So we see that this Karakoram mountain, this Karakoram range is also part of Trans-Himalayas. It's part of Trans-Himalayas. Now अब हम डिस्कस करेंगे पूर्वांचल हिल्स के बारे में. So my dear students, as we know that पूर्वांचल हिल्स is also known as Eastern Mountains. इन्हें Eastern Mountains कहते हैं. कहाँ पे है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स. क्लियर? पूर्वांचल हिल्स कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. दीज माउंटेन्स आल्सो नोन एज ईस्टर्न माउंटेन्स. पूर्वांचल हिल्स. Purvanchal Hills, also known as Eastern Mountains. Eastern Mountains भी कहते हैं. ठीक है ना. कहाँ पे है? We see that this is sub mountain. We see that range of Himalayas. Sub mountain range of Himalayas है. Sub mountain range of Himalayas. कहाँ पे है? In Northeast India. कहाँ पे है पूर्वांचल हिल्स? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड. ठीक है ना. यहाँ पे. सो वी सी दैट दीज पूर्वांचल हिल्स कहाँ पे है? इट लाइज साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. कहाँ पे है? इट लाइज साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. South of Brahmaputra river. And we see that the most of these hills, they are extended along the borders of India and Myanmar. And we see that Purvanchal Hills comprise of Patkai Boom Hills. इसमें कौन से important hills है? Patkai Boom Hills, Manipur Hills, Naga Hills, Naga Hills, Mizo Hills, Naga Hills, Mizo Hills, Dafla Hills. याद रखना. Dafla Hills कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश. याद रखना. अरुणाचल प्रदेश. Dafla Hills, Abar Hills, Mishmi Hills. कहाँ पे है? All we see that they are all situated in Purvanchal. इनको कहते हैं ईस्टर्न माउंटेन्स में है. पटकाई बूम हिल्स है,
मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, मिजो, डफला एंड अबॉर मुश्मी हिल्स, ठीक है ना। एंड वी सी त्रिपुरा हिल्स, मकीर हिल्स, याद रखना त्रिपुरा में हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मकीर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स एंड मकीर, त्रिपुरा हिल्स, मकीर हिल्स, याद रखना त्रिपुरा हिल्स, मकीर। दिस मकीर हिल्स इज कहां पे है? मकीर हिल्स साउथ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्नेड रेनो, वन हॉर्नेड रेनो, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क। So we see that these Purvanchal hills, Purvanchal, it is composed of strong sandstone which is in sedimentary rocks. क्या है वो? Sedimentary rock, ठीक है ना। And we see that it is concerned with dense forests. क्या है? dense forests है यहाँ पे ज्यादा, घने जंगल, dense forests Purvanchal hills में। And we see that Meghalaya Plateau, याद रखना मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू इज आल्सो पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। मेघालय प्लेटू भी है पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है, ठीक है ना। पूर्वांचल हिल्स, मेघालय प्लेटू इज आल्सो पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स इसमें, एंड वी सी दैट व्हिच इंक्लूड द हिल्स ऑफ गारो हिल्स, खासी एंड जनताई हिल्स। सो इट इंक्लूडेड गारो हिल्स मेघालय में, जनताई हिल्स एंड खासी हिल्स, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट, ये था ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज एंड पूर्वांचल हिल्स जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।